Wellness Waves, a podcast by Fortis Healthcare to discuss health and wellness related topics with nationally renowned experts from Fortis. Join us on this enlightening journey and ride the waves of wellness. Our brains are the most fascinating and complex organs. It requires both admiration and care. On this International Brain Day, let's celebrate the marvel of mind, the source of thoughts, creativity, and consciousness. Hello, and welcome to the special episode of Wellness Waves. Today, we'll talk about the overall well being of our brain and what daily regime should we follow to take care of our brain. For that, we have Dr. Praveen Gupta, who is the Chief of Neurology and Principal Director at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Hello and welcome to the show, sir. Hello, thank you. Sir, I have always heard brain is our command center. So, it is responsible for all the functions in the body. So, what regime should I follow to improve my brain health? You have very well said, Anjali. Brain is the most important organ of our body. You say you fall in love with the heart, but it is your brain that falls in love. The transmitters of the brain are responsible for everything that happens in life, the joys and the pleasures. So it is very important to take care of our brains. So what do we do for that? First is do regular exercise, because that boosts the blood flow to the brain, and it has shown in research that exercising every day reduces the risk of dementia. Second, sleep well. Brain repairs itself and stores memories in sleep. So if you sleep well, you will have better memory and better brain function. And sleep also regulates the hormonal profile of the body and reduces overall chronic disease burden. Then eat well. Avoid things like very fatty foods, avoid addictions like coffee and alcohol and smoking, and eat a lot of fruits, vegetables, nuts, berries, because these provide antioxidants and metabolites that help to repair and keep the brain active and alive. Also, engage in intellectually stimulating activity like we do exercise for building our muscles. These intellectually stimulating activities help to make the brain sharper. Engage in hobbies. Hobbies allow you to decongest and format your brain and put positive thinking in the brain, which gets tired of mundane day-to-day life. Also, avoid stress. Stress eats away the brain's bandwidth and it consumes the brain's transmitters, which impairs the brain's ability to function well, which leads to inattention, lack of focus, decreased memory. If we do these simple things in our daily life, we can keep our brain healthy and kicking. Thank you so much, sir, for providing this relevant information. A good and balanced diet always works as a fuel for our body. So, equal amount of nutrients our body requires time to time. So, आपके according कि कौन से ऐसे foods हैं जो हमारे brain को boost करने के लिए important है? देखिए, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन सब डाइट से मिलते हैं और ब्रेन के लिए डाइट का सिग्निफिकेंट रोल है। हमें ये चाहिए कि हम जो डाइट्स ब्रेन को इम्पेयर करती हैं उन्हें कम लें, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स, कोलेस्ट्रॉल, हाई कार्बोहाइड्रेट्स जो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाती हैं, कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में डिपॉजिट करके ब्रेन स्ट्रोक और साइलेंट स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ा के कोग्निटिव इम्पेयरमेंट का रिस्क बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करें। अल्कोहल और बहुत कॉफ़ी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें क्योंकि वो हमारे हार्मोनल और ट्रांसमिटर बैलेंस को इम्पेयर करती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत अच्छा रखें जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस को बेटर करते हैं, ऑक्सीडेशन और सेलुलर डैमेज को कम करते हैं। बी विटामिन्स लें, स्पेशली विटामिन B1 एंड B12 जो नर्व प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो वेजिटेरियन डाइट में तो खासकर मिल्क में पाया जाता है, इसलिए मिल्क जरूर लें। फिश ऑयल्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेन के बेटर मेटाबॉलिज्म और रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको लेना चाहिए। साथ में बेरीज और नट्स
ये सब ब्रेन के वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव रखते हैं। तो हेल्दी डाइट लीड्स टू अ गुड ब्रेन फंक्शन। सर, अपार्ट फ्रॉम फूड, ऑल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कि आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट होनी चाहिए, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ रनिंग, कार्डियो, जिमिंग, साइकिलिंग। सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ मच फिजिकल एक्सरसाइजेस आर बेनिफिशियल फॉर आवर ब्रेन? लॉजिक कहता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स बढ़ेंगे, हम फिजिकली बेटर होंगे। पर रिसर्च ये बताती है कि एक्सरसाइज से जो हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर होता है वो ब्रेन के ब्लड फ्लो को बेटर करता है, हमारे मेटाबोलाइट्स को रेगुलेट करके ब्रेन की आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है उसे कम करता है, ब्रेन के ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है। तो हमारे ब्रेन अटैक्स, साइलेंट स्ट्रोक्स, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करता है। तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर ब्रेन। और अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज ना भी कर पाए, सिर्फ 30 मिनट वॉक 5 days in a week कर लें, which is 150 minutes a week just, that is immensely beneficial for not just protecting the brain but also the heart. Sir, sleep is very important for our overall body health. Plus, जितने भी doctors हैं, I've heard they prescribe at least 8 hours of sleep in a day. So what do you think कि अगर हमारे sleeping patterns ठीक नहीं है, हमें 8 hours की sleep नहीं मिलती, तो क्या वो हमारे brain पे effect करते हैं? स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी नींद है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वाइटल है और ब्रेन की भी। हमारा जैसे हम एक कंप्यूटर या फोन को लगातार यूज करते रहते हैं तो वो ओवरहीट हो जाता है और हैंग करने लगता है। ऐसे ही ब्रेन जिसे हम लगातार यूज करते हैं उसे आराम की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस अपने आप को रेगुलेट करते हैं। हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज, वो स्लीप में फॉर्म होती हैं हिप्पोकैम्पस नाम के एक ऑर्गन के अंदर। हमारी थॉट्स, हमारे ब्रेन के सारे प्रोसेसेस स्लीप में ऑर्गेनाइज होते हैं और चीज़ों के बीच में एसोसिएशंस बनाते हैं, और ड्रीम्स भी जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है। अगर हम डीप स्लीप में नहीं जाते तो हमारा ब्रेन ये काम नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत लोग जो स्ट्रेस्ड होते हैं हमें आके बोलते हैं कि मेरा दिमाग तो रात में भी चलता रहता है और मैं सुबह रिफ्रेश्ड उठ नहीं पाता। क्योंकि ब्रेन जब डीप स्लीप में जाता है और सुबह उठता है तो वो एक फॉर्मेटेड कंप्यूटर की तरह होता है, एकदम फ्रेश। स्लीप इसलिए भी जरूरी है कि जो हार्मोनल बैलेंस है और जो ट्रांसमिटर बैलेंस है वो स्लीप स्टेजेस में रेगुलेट होता है। जो इन्फ्लेमेटरी ट्रांसमिटर्स जैसे कॉर्टिसोल और हार्मोन्स और सिंपैथोमाइमेटिक हार्मोन्स को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज को रेगुलेट करता है, और लॉन्ग टर्म में हमें ब्रेन डिसऑर्डर जैसे स्ट्रोक, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया से बचाता है। इसलिए स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अच्छा और रेस्टफुल हम सोएंगे उतना अच्छा हमारा ब्रेन नेक्स्ट डे और लॉन्ग टर्म में काम करेगा। सर, अब ब्रेन कैन बी इम्प्रूव्ड एट एनी एज, लाइक वी आर यंगस्टर्स, वी आर इनटू आवर 30s, हमारा ब्रेन एक अलग तरीके से फंक्शनिंग करता है। द एडल्ट हु इज 50 अबव और 60 अबव, उनका ब्रेन एक अलग तरीके से फंक्शनिंग करता है। सो इट कैन बी इम्प्रूव्ड एट एनी एज। देखिए, ब्रेन के अंदर प्लास्टिसिटी, नई लर्निंग, अपने आप को मॉडिफाई करने की इमेंस कैपेसिटी है। That is why it is an organ that has to be admired. इसलिए हम जब भी चालू करते हैं हमारा ब्रेन नई चीज़ों को लर्न कर सकता है, अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, ब्रेन के अंदर नए फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट कर सकता है, अपनी थिंकिंग का, अपने बिहेवियर का तरीका बदल सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग तो आर्ट करना सीखते ही 50 साल के बाद हैं, बहुत सारे लोग फिलॉसफी या राइटिंग 50 साल के बाद सीखते हैं। तो ब्रेन विल कोऑपरेट एंड इट विल एड यू टू लर्न न्यू थिंग्स, डेवलप इटसेल्फ, जीवन से प्लेजर ले पाएं, कुछ नया सीख पाएं। ब्रेन सब कर सकता है, सिर्फ आपको जरूरत है अपने ब्रेन को अप्लाई करके उसको यूज करने की। सर, एल्जाइमर्स एक ऐसी डिजीज है जो आजकल काफी ज्यादा बढ़ रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, एज पर यू, व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ एल्जाइमर्स? देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज एक डिजीज है जिसमें ब्रेन धीरे धीरे अपनी याद करने की, अपनी ब्रेन की मेमोरी एक्टिविटीज, जजमेंट,
कोग्निटिव एक्टिविटीज को खोने लगता है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एज एंड लाइफ स्पैन द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जितनी उम्र बढ़ती जाती है ब्रेन डीजनरेशन बढ़ने के कारण अल्जाइमर्स का खतरा बढ़ जाता है। अल्जाइमर्स के जो अर्ली साइंस हैं वो हैं चीज़ों को भूलना, जैसे चाबी रख के भूल गए, सामान कहाँ रखा है ये भूल गए। फिर वर्ड्स को ना बोल पाना, जैसे अगर आप पेन मांगना चाहते हैं तो अब ये पेन वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जो जिससे लिखते हैं वो दे दो। कुछ और मांगना चाहते हैं, आप कह रहे हैं वो दे दो, आप एग्जैक्ट वर्ड तक नहीं पहुंच पाते। आप नामों को भूलने लगते हैं। आप बात करते करते सब्जेक्ट का ट्रैक खो बैठते हैं और एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जंप करने लगते हैं। कभी कभी रास्ता भूलने लगते हैं। जिन लोगों को मिलते हैं वो भूल जाते हैं किन नए लोगों को मिले थे। जैसे जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो हॉस्पिटल में आके रूम को लोकेट नहीं कर पाते, उन्हें हेल्प चाहिए होती है। तो ये कुछ बहुत अर्ली साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी मेमोरी का लॉस हो रहा है। चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि ये लॉस क्यों हो रहा है, क्या ये अल्जाइमर्स डिजीज है या मेमोरी लॉस का कोई और कारण भी हो सकता है। Sir, last but not the least, what is the impact of mental health on our brain health? देखिए, मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन आर कंबाइंड, दे आर लाइक लॉक एंड की। तो हमारे जो नर्व ट्रांसमिटर्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर सारे प्रोसेसेस के इन्वॉल्व होते हैं वो मेंटल हेल्थ से जुड़े होते हैं। और खासकर हमारे जो मेमोरी, जजमेंट, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के एरियाज होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग को एनिमल से डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमारे इमोशनल एरियाज के बहुत पास होते हैं ब्रेन में ऑर्गेनाइज। तो उनका एक दूसरे पे बहुत क्रॉस असर पड़ता है। इसलिए जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो हमारे ब्रेन की जो शक्ति है, हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है वो ड्रेन होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ब्रेन एक कंप्यूटर है और आपने 50 अननेसेसरी फिल्म्स उसके अंदर लोड कर दी, तो नॉर्मल डेटा को लोड करने के लिए उसमें स्पेस ही नहीं बचता। अगर ब्रेन के ट्रांसमिटर्स कुछ और चीज सोचने में खर्च हो जाते हैं तो नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए ब्रेन के पास एनर्जी नहीं बचती। दूसरा, स्ट्रेस हमारी अटेंशन ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं सोच रहा हूँ कुछ और किसी चीज के बारे में, तो मैं आपके पूरे सेंटेंस को या जो आप मुझे बोल रहे हो उसको समझ नहीं पाऊंगा, मैं वो इंस्ट्रक्शंस को ग्रास्प नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनको रिमेंबर नहीं कर पाऊंगा। फिर स्ट्रेस हमें इरिटेबल बनाती है, वो हमें रिएक्ट करवाती है, हमें चीज को समझ के रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को ले लेती है। फिर स्ट्रेस और मेंटल इल हेल्थ हमारी इम्यूनिटी को खराब करती है, जिससे हमें इन्फेक्शंस और डिजीजेस बढ़ जाते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर और शुगर को इम्पैक्ट करती है, जिससे हमें स्ट्रोक, डिमेंशिया, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए स्ट्रेस बहुत सारे तरीके से हमारे ब्रेन की हेल्थ को इम्पेयर करती है और आज की डेट में पुअर ब्रेन हेल्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस। तो अगर हम स्ट्रेस को डील कर पाएं तो हम अपने ब्रेन हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। पुराना राइम है, फॉर एवरी प्रॉब्लम अंडर द सन देयर इज अ सॉल्यूशन और नन। इफ देयर इज, फाइंड इट, इफ देयर इज नॉट, देन नेवर माइंड इट। मीन्स चीजों के बारे में अननेसेसरी ओवरथिंक नहीं करना है, राइट सॉल्यूशंस पे फोकस करना है और अपनी लाइफ से प्लेजर ड्रॉ करना है। लिविंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, सो लिव एंड सेलिब्रेट लाइफ। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much for taking out your crucial time for us. That's a wrap up on today's episode. Thanks to our neurodoc, Dr. Praveen Gupta, for taking out his crucial time for us and for letting us know that our brain health is equally important and what self-care techniques we should follow to keep our brain active and healthy. In the end, I just want to say, stay brain healthy and happy. Thank you.